find out or search out particular things, these parts and things, when you shall have to let these things on lend, मीन्स जब तुम्हें या तो किराए पे देना हो या तो जब तुम्हें जरूरत पड़ती है, तब इन ढेर सारी चीजों में से उन चीजों को तुम खोजती हो कि हम यूज करें पर्पस के लिए। अन्यथा ऑल दीज थिंग्स लाई हियर साइलेंटली बिकॉज दीज आर द लाइफलेस थिंग्स फॉर द यूज ऑफ द एनी पर्सन। Again I heard the unnatural sound of my voice and I went on. I remember my mother once asked me if I would help her polish the silver. एक बार की बात है, when the mother of this young girl was alive in their home, then mother asked to help in silvering the things, means पॉलिश करना, मेंटेन करना, धोना, साफ करना, ये करने के लिए मदर ने उन चीजों को इस यंग गर्ल की मदर ने कहा था। It was a very long time ago and I was probably bored that day, or perhaps I had to stay at home because I was ill, as she had never asked me before. I asked her which silver she meant and she replied, surprised, that it was the spoons, forks and knives, of course, and that was the strange thing. I did not know the cutlery we ate of every day was silver. देखो, सिल्वर इज द सिंबल। सिल्वर क्या होता है हिंदी में समझा रहा हूं। जैसे किचन के जितने सामान हैं उसमें आपके चम्मच वगैरह से जितनी चीजें यूज होती हैं, कांटा, छुरी एटसेट्रा, उसके बाद थाली, बर्तन, कटोरी, मतलब ये जो किचन की जितनी सारी ऑल थिंग्स कलेक्टिवली आर कॉल्ड सिल्वर, दैट इज बर्तन, कटलरी। तो वही ये लड़की कह रही कि जब मैं जाना कह रही ये सब की सब चीजें सिल्वर कहलाती है, जिसे मम्मी धोने और साफ सफाई मेंटेन करने को कह रही हैं। देन शी गॉट सरप्राइज्ड दैट शी वाज नॉट नोइंग दैट ऑल दीज आर कॉल्ड सिल्वर एज अ वन, एज अ होल। वो सरप्राइज कह रही सिल्वर भी कहे जाते हैं, उसे तो डिफरेंट डिफरेंट नेम आते हैं, फोर्क एंड नाइव्स एंड एटसेट्रा, स्पून्स एटसेट्रा, बट इफ यू कलेक्ट ऑल दीज थिंग्स then you can call all these as one, that is the silver. The girl laughed again. I bet, मैं शर्त लगाते हूँ, you don't know it is either. I looked intently at her. Intently means interestingly, means during the conversation this young girl looked at that kid girl seriously. What we eat with, she asked. Well, do you know? She hesitated means doubted. She walked to the sideboard and wanted to open a drawer. I shall look, it is in here. I jumped up. I was forgetting the time. I must catch my train. That girl was, during the conversation, little kid was happy and talking and trying to show each and everything of her kitchen, her room. But this young girl said that no. She was going to late catch to train. वो बताई कह रही नहीं, इतना समय मेरे पास नहीं है, मम्मी आ जाते हैं तुम्हारे तो ठीक है, अन्यथा मैं जा रही हूँ, मुझे ट्रेन पकड़ना है, अगर ट्रेन छूट गई तो मुझे बड़ी दिक्कत हो जाएगी। She had her hand on the drawer. Don't you want to wait for my mother? Then this little kid said that whether she did not want to meet with her mother. No, I must go. I walked to the door. The girl pulled the drawer open. I can find my own way. Suddenly, this young girl decided to go out from the home. As I walked down the passage, I heard the jingling of spoons and forks. And when that young girl was coming out through the stairs, out of the home, then she was passing near from the side of the kitchen, and then she heard the jingling में झंझनाहट, खनखनाहट, tinkling sound of the silvers in the kitchen, which were made in motion due by the little kid girl. At the corner of the road, I looked up at the nameplate Marconi Street. It said, when last time that girl was returning back, young girl, then last time she gave a serious glance towards the nameplate which was showing the Marconi Street. I had been at number 46, the address was correct, but now I did not want to remember it anymore. Look here, this passage now, all these line up to the last.
are going to be important to understand the whole lesson. So कह रही है कि but now I did not want to remember it anymore. वो कह रही है कि she was not desiring, she was not desirous to memorize, to recall again all these past things belonging to her near and dear, that is belonging to her mother, father, parents, etc. वो लड़की कह रही कि अब मैं बाहर आ गई थी, जा रही थी घर, और अब मैं यह नहीं चाहती थी कि उन चीजों से जो अतीत में मेरी थी, मेरे मम्मी पापा के थी, मुझसे बिलोंग करती थी, उनसे अब मेरा कोई नाता रहे। मैं उनसे कोई संबंध और नाता नहीं रखना चाह रही थी। I would not go back there. कह रही है कि now she would not go back. अब वह वापस कभी उस घर में उन चीजों को देखने, उन चीजों के तलाश में नहीं जाएगी। Because the objects that are linked in your memory with the family, देखो कह रहा है because reason important चीज है, because क्योंकि, इसे हिंदी में समझ लो, because the objects that are linked, यानी objects में चीजें, that are जो कि हैं, linked जुड़ी हुई, in your memory तुम्हारी memory क्या मतलब, अतीत की यादें, बीते हुए पल। भाई आप भी कोई चीज मेमोरी में रखते हो तो कहते हो ना कि मतलब सिंबलाइज क्या होता है कि नहीं, पीछे की बात याद है। तो इन योर मेमोरी यानी जो अतीत की यादें हैं, अतीत की चीजों से जुड़ी हुई हैं ये बातें। विथ द फेमिलियर लाइफ ऑफ फॉर्मर टाइम्स, फेमिलियर मींस जानी पहचानी, यानी वो जिंदगी जो आप जी चुके हो उससे जुड़ी हुई ये चीजें हैं। टाइम्स इंस्टेंटली लूज देयर वैल्यू, शीघ्र, इंस्टेंटली मींस क्विकली, ऑन द स्पॉट, शीघ्र ही, लूज खो देती है, देयर वैल्यू उनका महत्व, व्हेन जब सेवर्ड फ्रॉम देम, सेवर्ड मींस डेविएटेड, सेपरेटेड, अलग की जाती हैं, फ्रॉम देम उनसे। यानी लड़के कहने का क्या मतलब है समझो, मानो आपके मम्मी पापा हैं, कुछ चीजें उनकी याद की हैं आपके पास, लेकिन कोई ऐसी दुर्घटना घटी या जैसा घटा, अप्रिय घटना, जिससे वो दूर हो गए। तो अब आप उन चीजों को देखते हैं तो चीजों को देखकर खुशी नहीं होती है, चीज तो नीरस हो जाती है जब जो उन चीजों वाले चले गए। तो क्या होता है कि बस वो अतीत की याद दिलाती हैं, मम्मी पापा की याद दिलाते हैं, या अदर ऐसी कई परिस्थितियां हैं, तो बड़ी दर्द होता है, दुख होता है। ऐसा अभी आप लोग बच्चे हो नहीं जानते होगे, लेकिन जब बड़े होगे तो ये चीज रियलाइज होगा। तो वही चीजें कह रही है कि जब मेरे मम्मी पापा ही नहीं रहे तो उनकी चीजें जब उनसे जुड़ी हुई हैं वो भी कितनी मशक्कत से मिलेंगी या नहीं, तो मैं उन चीजों को याद करके और रख के क्या करूंगी, नो नीड, मुझे जरूरत नहीं, क्योंकि वो मम्मी पापा की याद आएगी, अतीत की यादें आएंगी जो सुखद क्षण थे, और मुझे कष्ट होगा, दुख होगा, क्योंकि इस समय मम्मी पापा मेरे पास नहीं है, उनकी याद आएगी। तो उससे बढ़िया है कि जब मम्मी पापा ही नहीं रहे तो उनकी चीजों को लेकर मैं क्या करूंगी, लेट दोज थिंग्स रिमूव अवे, भूल जाओ इन चीजों को, छोड़ दो। एंड सेम थिंग वाज डिसाइडेड बाय दिस गर्ल, आई थिंक नाउ क्लियर दिस लाइन। और यही ये है पूरा की नोट है। यू सी देम अगेन इन स्ट्रेंज सराउंडिंग्स, कह रहे हैं कि अब उनके बाद अगर आप उन चीजों को देखते हैं तो वो अजीब सी लगती हैं, उनके इर्द अजीब सा लगता है, सुनसान सा लगता है, या अतीत की यादें देखते ही अतीत की यादों से जुड़ जाता है, लेकिन उसके बाद वो सुनसान सा लगता है, कुछ स्ट्रेंज लगता है, इंटरेस्टिंग नहीं होता, उतना लविंग एंड प्लीजेंट नहीं होता। एंड व्हाट शुड आई हैव डन विथ देम इन अ स्मॉल रेंटेड रूम, अब कह रहे कि आगे मान लो ले भी लिया है निहाउ, तो फिर अपना छोटा सा रूम रेंटेड किराए का है, उसमें मैं कहाँ रखूंगी, उनका क्या करूंगी। Where the shreds of black out paper still hung along the windows and no more than a handful of cutlery fitted in the narrow table drawer, कह रही कि जहाँ मैं किराए पे हूँ, छोटा सा रूम है, बहुत छोटी सी कटलरी, अगेन मतलब वो जो खाने पीने की किचन की चीजों साजो सामान है वो सब एक कॉर्नर में टेबल में पड़े हुए हैं, और दूसरी तरफ दीवारों पे पेपर लगे हुए हैं, वो भी पुराने घिसे पीटे हुए हैं। तो उनमें ले जाकर इन चीजों को क्या करूंगी, मेंटेन तो कर नहीं पाऊंगी, इसलिए फॉरगेट दिस थिंग्स, ताकि मैं फ्री रहूंगी, कम से कम अतीत की बातों को बार बार देखकर याद नहीं आएंगी, मुझे दुख और मुझे कष्ट नहीं होगा। आई रिजॉल्व मीन्स फॉर्मली डिसाइडेड, दृढ़ प्रतिज्ञ होकर निर्धारित कर लिया, सोच लिया, डिसाइड कर लिया, टू फॉरगेट द एड्रेस, दैट शी वुड फॉरगेट द एड्रेस ऑफ ऑल द थिंग्स आई हैड टू फॉरगेट, दैट वुड बी द इजीएस्ट। कह रही है लेखिका कि चीजों को भूल जाना, बिलोंगिंग टू द पास्ट मेमोरी, इज मोर इजी, मोर बेनिफिशियल
देन टू कीप देम इन मेमोरी, टू रिकॉल देम इन मेमोरी। अतीत की बातों को भूल जाना, भुला देना, चीजों को, बातों को ही ज्यादा श्रेयस्कर होता है अपेक्षाकृत कि उन्हें बार बार याद करके दुखी रहना, उदास रहना, क्योंकि अतीत तो अतीत हो चुका है, बीत चुका है, एंड बीता समय कभी आता नहीं है। लॉस्ट थिंग इज लॉस्ट फॉर एवर, दैट्स ऑल। थ्रू दिस वे योर सेकेंड लेसन इज कंप्लीटेड। इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटिंग टू वर्ड मीनिंग, contact, ask me, inquire of me, otherwise I will say bye, and if you have any problem then you can call me on my personal number। कम्बरसम मीन्स होता है बेटा ऐसी चीजें जो कि यूजफुल कम हो लेकिन जगह ज्यादा घेरती हो, थोड़ा उन्हें हैंडल करना तकलीफप्रद होता है, परेशानी भरा होता है, फिर भी आप घर में जरूरी है तो रखते हो, दैट इज कॉल्ड कम्बरसम। INSISTED, इंसेस्टेड मीन्स टू प्रेशराइज, जोर देना, इंटरेस्ट लेना, जोर देना, एम्फेसाइज करना, इंसिस्टेड होता है। इस साल बेटा नॉवेल आप लोग के क्लास में नहीं है, नॉवेल रिमूव हो गया है पूरा का पूरा, केवल बुक 2 पढ़नी है, उसमें भी कुछ लेसन खत्म हो चुके हैं। बोलिए आगे। नेक्स्ट, ऑप्रेस्ड, OPPRESSED, ऑप्रेस्ड मीन्स सप्रेस्ड, दबाया हुआ, कुचला हुआ, दमन किया हुआ। जैसे अंग्रेजों ने हमें ऑप्रेस्ड करके रखा था, स्लेव बना के रखा था, डरा धमका के रखा था, हमारे अधिकारों का हनन कर रखा था, दैट इज कॉल्ड ऑप्रेस्ड।